Hello students, today we will discuss chapter number 5, the great preachers. Okay, so in this video we will discuss about what later Vedic period. In Gadget section, two quotes are given. One is of Jawaharlal Nehru, another is of Mahatma Gandhi. You just read it. Both the quotes are very nice. Yes. So beta, in this video we will discuss later Vedic period, Buddhism and Jainism. Okay, so when we talk about the later Vedic period, our society underwent many changes, like change in the caste system grew very rigid. Brahmins become the most important. First Brahmin, then Kshatriya, then Vaishya, and then Shudra. Okay, so Brahmins occupy the first position and the last position is occupied the Shudra. The Shudra were very badly treated by these all three. They were not allowed to take water from the wells of the higher classes. Plus, even they were denied to take entry from the temples. God is for all. But सोसाइटी वॉज लाइक कि नहीं शूद्र हो आप टेम्पल्स में एंट्री नहीं ले पाएंगे. तो क्या हुआ बेटा, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड बन गया. ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. शूद्र का सबसे लोएस्ट पोजीशन था. इवन उनको थिंग समझा जाता था रादर देन अ पर्सन और अ सिटीजन. उनको क्या अलाउ नहीं किया, टेम्पल्स में एंट्री डिनाइड थी. उनको किसी कॉमन वेल से वाटर फैच करना डिनाइड था. रिलीजियस बहुत कॉम्प्लेक्स बन गए. ठीक है, एक्सपेंसिव बने, डिफ़िकल्ट, उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो गया उनको प्रैक्टिस करना. इतने एलॉबरेट रिचुअल्स होते थे. उसके बाद उसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे. ठीक है, तो ये सब फाइनेंशियली बर्डन था किसके ऊपर, एक कॉमन पीपल के ऊपर. जो मिडिल क्लास कॉमन पीपल होते थे, दे वर नॉट एबल टू वर्शिप द गॉड. वाई सो? बिकॉज एवरी रिचुअल इज सो एक्सपेंसिव. Every ritual required animal sacrifice. Okay, this is one more problem associated with later Vedic period. Yes, the language used for ritual and sacrifices was Sanskrit. जो language use होती थी rituals के लिए, sacrifices के लिए, वो थी संस्कृत. संस्कृत ना आज कॉमन है ना पहले कॉमन थी. कभी भी संस्कृत बहुत कॉमन नहीं थी बेटा. आज जो आपको बुक्स में टेक्स्ट में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है वो तो बहुत ईजी वर्जन है. जो वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड के बाद वाला संस्कृत था वो तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, टफ था. तो these concentrated the language, understanding, reading, writing concentrated in the hands of only Brahmins. Okay, students, so various problems are there in the society. Some people were not very much satisfied with the pattern of the society. They want a peaceful life. They don't want to perform that expensive ritual and sacrifices. They want truthful life. Okay, and according to them, the truthful life is most important as compared to ritual and sacrifices. So the two person who is known for the reformation of the society is Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir. Okay, these were two such thinkers who started reformation of the society, who want changes in the society. And students, their teaching, the teachings of Gautam Buddha give birth to Buddhism, and Vardhaman Mahavir teachings Jainism. Okay, yes students, this is the statue of Gautam Buddha. Okay, so first we will read the life of Gautam Buddha. Okay, his views on religion, and then we will start Mahavir. Okay, Vardhaman Mahavir. So students, first we will discuss early life of Gautam Buddha. So Gautam Buddha was a Kshatriya prince थे. इनका जो बर्थ नेम था वो था सिद्धार्थ, और इनका बर्थ हुआ था 563 BCE, बिफोर कॉमन एरा. ज़ीरो से आज हम 2021 हैं. ठीक है, ज़ीरो के बाद वाला जितना भी पीरियड है ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट को दिखाता है बेटा. ये ईयर जो है ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट को दिखाता है. इसके बाद वाला जो जितना भी पीरियड होगा इसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉमन एरा. पर बेटा ज़ीरो के पहले वाला जितना भी एरा है उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और इसकी ऐसे काउंटिंग होती है. पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3. तो अगर यहाँ से हम काउंट करते जाएं तो कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, 563
तक जाना पड़ेगा। तो आप प्लस कर लें, 2021 में 563, मतलब अगर हम महावीर की बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध का जो बर्थ था वो कितने ईयर्स पहले होगा, रफली 2500 ईयर अगो, और वी कैन से 2600 ईयर अगो, क्योंकि जहाँ पर भी VC लिखा होता है बेटा उसकी काउंटिंग बैकवर्ड होती है। पहले आप 2001 से कहाँ तक जाएँ, 0 तक जाएँ, और फिर 0 से बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए 563 ईयर तक। ओके, ही गॉट मैरिड एंड हैज़ अ सन, इनकी शादी हुई, इनका एक बेटा भी था। ठीक है, बहुत सारे लीजेंड्स जिन्होंने इनकी लाइफ को लिखा है उनका मानना है कि इन्होंने 4 चीज़ों को देखा अपनी लाइफ में, एंड ही हैज़ चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, एंड द 4 थिंग्स दैट अफेक्ट हिज लाइफ इज द ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, एस्केटिक। सो ओल्ड मैन यू आर ऑल नोइंग, बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, एक डेड बॉडी देखी, एस्केटिक मतलब सन्यासियों को देखा। तो जब इन तीन चीज़ों को देखा, उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, बीमार पर्सन को देखा, डेड बॉडी को देखा, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे वर्ल्ड में सफरिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं। ठीक है, बट जब उसने 4th साइड को देखा जिसका नाम है एस्केटिक, तो उसको लगा कि जो साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, इनको अपने आसपास जितना भी पेन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लिविंग देयर लाइफ बाय हिज ओन वे, दे आर इंडिविजुअल ओनली, नो मदर फादर, नो सिस्टर डॉटर, नो बडी इज़ देयर, दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीवन, लिविंग हैप्पीली देयर लाइफ। कभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। तो सिद्धार्थ को रियलाइज़ हुआ कि सफरिंग्स को एंड करना है तो आपको भी एस्केटिक वैल्यूज़ को ध्यान देना पड़ेगा, आप भी एस्केटिक बन जाए। तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ा और एस्केटिक बन गए। ठीक है, सिद्धार्थ 6 साल तक यहाँ वहाँ घूमते रहे, पर एक बार वो पीपल ट्री के अंदर जो गया में है, गया कहाँ पर है बेटा, बिहार में, गया कहाँ पर है, बिहार में है। बिहार में एक पीपल ट्री के अंदर वो तपस्या करने लगे, मेडिटेट करने लगे। जब वो मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो जब उनको ध्यान लगाते हुए 49th डे हो गया, तो उस 49th डे पे उनको सुप्रीम नॉलेज एनलाइटनमेंट अचीव हो गया। ठीक है, उनको अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, एंड देन ही बिकेम बुद्धा, सिद्धार्थ से बुद्धा बन गए वो। 49th डे उन्होंने जो मेडिटेशन किया था, मेडिटेशन स्टार्ट किया, प्रार्थना स्टार्ट की, ध्यान लगाया, उसके 49 डे उनको एनलाइटनमेंट मिल गया और उसके बाद उनको बुद्धा कहा जाने लगा। ठीक है, और बेटा जिस पीपल ट्री के अंदर उनको ज्ञान मिला था उसको बाद में क्या बोला जाने लगा, बौद्ध वृक्ष। ओके, फिर जैसे इनको ज्ञान मिला, ये पहले कहाँ गए बेटा, डियर पार्क गए। और कहाँ पर डियर पार्क, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास में है सारनाथ। तो वाराणसी में भी स्पेसिफिक एक डियर पार्क है, ये वहाँ पर गए। इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पर दिया बेटा, वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में, पर इन्होंने पहला जो अपना उपदेश है वो कहाँ पर दिया बेटा, वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने क्या बोला, धर्म चक्र परावर्तन, धर्म चक्र परावर्तन, इन्होंने यहाँ पर सिटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म। ठीक है, तो पहला इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बिहार में हुई, पहला उपदेश इन्होंने उत्तर प्रदेश वाराणसी के सारनाथ के डियर पार्क में दिया। ठीक है, और यहीं से इट इज़ नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है बेटा, ये वो प्लेस है सारनाथ जहाँ पर ये धमी एक स्तूप बना हुआ है। ठीक है, देखो कितना बड़ा है कि लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, देख रहे हो। ठीक है, ही वेंडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बहुत सारी प्लेसेस पे गए, इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए, बहुत सारी टीचिंग्स दी, बट इन 483 BC में इनकी डेथ हो गई, जब ये 80 ईयर के थे। ठीक है, तब इनकी डेथ हो गई। तो 43 BC मतलब हम लोगों ने बर्थ निकाला था कैसे कि रफली 2600 ईयर अगो इनका बर्थ हुआ होगा, वैसे ही ऐसे 2021 में आप प्लस करो 483 बेटा, तो क्या आ जाएगा 3 और 1, 4 8 और 2, 10 का 0 कैरी का 1, तो 2504 ईयर बैक इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 80 ईयर इनका क्या रहा, लाइफ पीरियड रहा। और ये कहाँ पर इनकी डेथ हुई बेटा, कुशीनगर में हुई, और कुशीनगर कहाँ पर है बेटा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम टीचिंग्स की बात करेंगे तो इन्होंने 8 नोबल ट्रुथ की बात की थी और 8 फोल्ड पाथ की बात की थी। अगर इस 8 फोल्ड पाथ को हम हिंदी में बोले तो उसको बोल रहे हैं
अष्टांगिक मार्ग, क्या बोलते हैं बेटा, अष्टांगिक मार्ग। चार ट्रुथ की बात की है और अष्टांगिक मार्ग की बात की है, तो वो चार ट्रुथ हैं जो हम सबको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। वो ट्रुथ हैं, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ऑब्वियस सी बात है, हम सब की लाइफ में कोई ना कोई सफरिंग है, और इस सफरिंग का जो कॉज है वो हमारी डिज़ायर है, हमारी इच्छाएं हैं। जहाँ हमारी इच्छा ख़त्म होंगी, जहाँ हम हमारी डिज़ायर्स पे ओवरकम कर जाएंगे, हमारी सफरिंग्स का एंड हो जाएगा। टू एंड डिज़ायर वन मस्ट फॉलो एट फोल्ड पाथ। अगर आपको डिज़ायर्स को ख़त्म करना है, कम करना है, तो आपको ये एट फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एट फोल्ड पाथ में क्या बोला उन्होंने, राइट थॉट, आपके जो विचार हों वो राइट सही हों, राइट आपका बिलीफ हो, आपकी स्पीच, आपका बोलना बिल्कुल सही हो, आप जो भी काम करें, आपके जो एक्शंस हैं वो सारे सही होने चाहिए। आपका जो लाइवलीहुड है, जो मीन्स ऑफ अर्निंग है वो राइट होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पॉकेट मारते हैं, कुछ लोग बैगबॉन बन जाते हैं, कुछ शूटर बन जाते हैं, तो उन लोगों की जो लाइवलीहुड है बेटा वो राइट मीन्स से नहीं आ रही है ना। तो ऑलवेज अडॉप्ट राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस ऑल एट फोल्ड पाथ, देन योर लाइफ बिकम लेस सफरेबल। या तो सफ़र करेगी ही नहीं, वो लेस सफरेबल बन जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध, और बुद्ध का ऐसे बिलीव था कि अगर आप एट फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करोगे तो आप मिडिल पाथ को अडॉप्ट कर रहे हो, और लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ना ही तो आपको बहुत लग्जूरियस लाइफ जीनी है, ना ही तो आपको सब कुछ छोड़ के सफ़र करना है। डोंट लीव एवरीथिंग एंड डोंट रिक्वायर्ड एवरीथिंग लग्जरी इन योर लाइफ। ओके, बैलेंस बना रहे आपकी लाइफ में, और अगर आप इस बैलेंस के साथ चले, आपने फोर ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया, आपने एट फोल्ड पाथ को अडॉप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग काम किया, तो आपको ऑब्वियस सी बात है मोक्ष या निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, The Buddha did not approve rituals and animal sacrifices. बुद्धा ने एनिमल सेक्रीफाइस को हमेशा ही डिनाई किया है। जो बड़े बड़े रिचुअल्स होते थे, जिनमें जो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, उन्होंने उनको भी कभी अप्रूव नहीं किया है। ही लैड स्ट्रेस ऑन अहिंसा। उनका मेन जो स्ट्रेस था वो अहिंसा पे था। मतलब आपको किसी भी लिविंग बींग को इंजरी नहीं देनी है, भले वो एनिमल हो या ह्यूमन बींग हो। ठीक है, बुद्ध का बहुत ज़्यादा विश्वास था लाइफ आफ्टर डेथ में। किस में? लाइफ आफ्टर डेथ में। तो उनका मानना ये था कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी लाइफ मिलने वाली है, आपकी जितनी भी बैड डीड्स हैं वो आपको पनिश कराएंगी। चलो तो हम पढ़ते हैं। द बुद्धा बिलीव्स दैट आवर एक्शंस डिटरमाइन द काइंड ऑफ लाइफ वी वुड लीड। हम किस टाइप की लाइफ जिएंगे ये हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है। अगर हम गुड डीड्स करेंगे तो फर्दर लाइफ में हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लाइफ में हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हो सकता है इसी लाइफ में आगे आपको बहुत कुछ अच्छा मिले, और अगर आप इविल डीड्स करोगे तो आपको इसी लाइफ में पनिशमेंट मिल सकती है, फ्यूचर में पनिशमेंट मिल सकती है। बुद्ध अपोज द कास्ट सिस्टम एंड प्रीज्ड इक्वालिटी। बुद्ध जो लॉर्ड बुद्ध थे, उनको कास्ट सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, और वो इक्वालिटी की, उन्होंने जितनी भी अपनी टीचिंग्स दी उसमें किसकी बात की बेटा? इक्वालिटी की बात की। लाइक वी ऑल आर इक्वल। एंड बेटा बुद्धिज़्म इज़ द ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म से ही कहीं बुद्धिज़्म निकला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मोर टू नो सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरियस knowledgeable information is given in this section, so don't leave more to know section of any of the chapter. Okay, Java was an important center of Buddhism. If somebody asks you there is Buddhism in Java, say yes. So the temple बोरोबुदूर जो टेम्पल है, बोरोबुदूर जो टेम्पल है वो कहाँ पर है बेटा? जावा में है। बोरोबुदूर टेम्पल कहाँ पर है स्टूडेंट्स? जावा में है। मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड के फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में एक है। इट वॉज बिल्ड बाय द रूलर शैलेंद्र डायनेस्टी। शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर ने बोरोबुदूर टेम्पल बनाया है। कहाँ पर बनाया है बेटा? जावा में बनाया है। द टेम्पल एट बोरोबुदूर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो बोरोबुदूर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक पार्ट है। ठीक है, सो ही टॉट अबाउट इक्वालिटी अमंग द पीपल। दिस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ शूद्र टू बुद्धिज़्म। बहुत सारे शूद्र काय में कन्वर्ट कर गए अपने आप को बुद्धिज़्म में, बिकॉज दैट टाइम द कंडीशन ऑफ शूद्र वॉज वेरी बैड। दे वर ट्रीटेड बाय द पीपल इन अ वेरी बैड मैनर। दैट इज वाई दे हैव अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध एवरीबडी इज इक्वल। ओके, religious text. The Buddhist sacred texts are known as Triptikas. क्या बोलते थे बेटा? Triptikas, three basket. Buddhist sacred text को हम क्या बोलते हैं? Triptikas, three baskets. Written in Pali language. किस लैंग्वेज में लिखा गया बेटा? पाली लैंग्वेज में लिखा गया। और पाली उस टाइम की बहुत कॉमन लैंग्वेज थी। सी, ब्राह्मण्स जिनका हेजेमनी संस्कृत पे था, जो कोई इजीली नहीं समझ पाता था, बट पाली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर कोई इजीली समझ लेता था। ठीक है,
पाली जो लैंग्वेज थी स्टूडेंट्स वो सब लोग समझ लेते थे, पढ़ लेते थे। तो त्रिपिटिकास में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स? बुद्ध की टीचिंग, ओके, टीचिंग ऑफ द बुद्धा। वन मोर बुक्स आर देयर दैट इज जातक, इंग्लिश में जटका और हिंदी में इसको जातक बोलते हैं, जातक टेल्स। जातक टेल्स क्या होती हैं बेटा? स्टोरीज अबाउट प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्ध, ठीक है, अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। और ये त्रिपिटिका झटका ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना, ये बुद्ध ही है, ये ब्रिटिश पीपल को लिखने, उनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो भी उनकी XYZ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने सबके आगे ये लगा दिया, राम के आगे लगा दिया, रामा बोलने लगे। तो हम रामा थोड़ी बोलेंगे, हमें तो पता है ना उनका नाम राम है, तो ऐसे हमें पता है वो गौतम बुद्ध थे, तो हम बुद्ध बोलेंगे कि बुद्धा बोलेंगे? बुद्ध बोलेंगे ना बेटा। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेंचुरी थी कॉमन एरा की, जो फर्स्ट सेंचुरी थी, वहाँ पर बुद्धिज़्म के दो स्प्लिट हो गए, एक था हिनायान, दूसरा था महायान। जो फर्स्ट सेंचुरी थी, किसकी फर्स्ट सेंचुरी थी बेटा? कॉमन एरा की जो फर्स्ट सेंचुरी थी, वहाँ पर बुद्धिज़्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हिनायान, दूसरा महायान। द फॉलोअर ऑफ हिनायान बुद्धिज़्म रेस्पेक्ट बुद्ध एज अ प्रीचर। ये सिर्फ हिनायान किसको रेस्पेक्ट करते थे बेटा? बुद्ध को एज अ प्रीचर। और जो फॉलोअर थे महायान बुद्धिज़्म के, वो बुद्ध को एज अ गॉड मानने लग गए थे, ठीक है। महायान क्या मानते हैं बेटा? बुद्ध को भगवान। महायान के लिए बुद्ध भगवान है, पर बाकी हिनायान के लिए बुद्ध एक टीचर थे, ठीक है, प्रीचर थे, टीचर थे। सो स्टूडेंट्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया, और उसके स्प्रेड होने के बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न तो सिंप्लिसिटी, ठीक है। कभी भी बुद्ध ने बहुत एलॉबरेटेड रिचुअल सेक्रीफाइसेस की बात नहीं की। ये बहुत इजी था लोगों के लिए उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना, एक्सपेंसिव भी नहीं थे। लैंग्वेज की बात करें तो जैसे हम ब्राह्मण्स की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, उनके सेक्रीफाइसेस, तो वो सब कुछ संस्कृत में होता था, जो कॉमन पीपल को समझ में नहीं आता था। पर इनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली उस टाइम की कॉमन लैंग्वेज थी, ठीक है, तो पाली सबको समझ में आ जाती थी। इसीलिए उन लोगों ने इजीली एम्ब्रेस किया बुद्धिज़्म को। रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, बेटा वैसे भी पहले ब्राह्मण आएंगे, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य, फिर शूद्र। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो यहाँ पर ये दो कम्युनिटी थी, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी इस कास्ट रिजिड कास्ट सिस्टम में, जिसमें कि शूद्र तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इन लोगों ने भी बुद्धिज़्म को बहुत ईजीली क्या किया, एम्ब्रेस कर लिया, क्योंकि कास्ट सिस्टम में कुछ भी अच्छा नहीं है, आज तक हम उसको फेस कर रहे हैं। ही सेड दैट एवरीवन हु फॉलोड एटफोर्ड पाथ कुड अचीव निर्वाण। इनके अकॉर्डिंग था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शूद्र हो या ब्राह्मण हो उसी को निर्वाण मिलेगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति एटफोर्ड पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसको अपनी लाइफ में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? निर्वाण मिल जाएगा। तो यू शुड फॉलो, एवरीबडी शुड फॉलो एटफोल्ड पाथ, ओके। भले ही उसका सोशल ओरिजिन कोई भी हो, वो शूद्र फैमिली का हो, क्षत्रिय फैमिली का हो, ही कैन अचीव निर्वाण बाय फॉलोइंग एटफोल्ड पाथ, ओके। द बुद्ध स्ट्रेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। सारे ह्यूमन बींग में इक्वालिटी हो, इस बात पे बुद्ध का बहुत स्ट्रेस था। स्टूडेंट्स, इट इज़ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। और ये मोनेस्ट्री कहाँ पर थी बेटा? उदयगिरी। उदयगिरी में भी बुद्धिस्ट बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री, उसमें से इसका ये एक पिक्चर है, ठीक है। क्या है ये? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। कहाँ की? उदयगिरी की। नेक्स्ट इज संघ। द संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बुद्ध। बुद्ध ने इस संघ को एस्टेब्लिश किया था, और इसकी मेन ड्यूटी थी किसको प्रिजर्व करके रखना बेटा? बुद्ध की टीचिंग को प्रिजर्व करके रखना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? संघ की। रॉयल पैट्रोनेज की अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म वॉज पैट्रोनाइज बाय मेनी रूलर्स ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड के बहुत सारे जो रूलर्स थे उन सब ने बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज कर लिया, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें से कि एक जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के रिकॉग्नाइज्ड कौन ए पर्सन है वो हैं अशोक, ओके। अशोक ने भी बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। बुद्धिज़्म वॉज पैट्रोनाइज बाय मेनी रूलर, ओके। लेटर बुद्धिज़्म स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया गया, इंडिया से चाइना गया, जापान गया, तिब्बत गया, श्रीलंका गया, और इस सब की स्प्रेड में इंडियन रूलर अपने अशोक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो स्टूडेंट्स, डिक्लाइन के लिए अगर हम बुद्धिज़्म के डिक्लाइन के रीजंस बोले, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इज लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज,
शंकराचार्य रिफॉर्म मूवमेंट दैट enabled हिंदुज़म टू रीगेन अर्लियर पोजीशन। शंकराचार्य जो रिफॉर्म मूवमेंट चली उसमें हिंदुज़म में थोड़े से चेंजेस लेके आए, जिससे हिंदुज़म को फिर से वही पोजीशन लोग मिल गई और लोग बुद्धिज़्म को छोड़ के किसकी टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए, हिंदुज़म की टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए। फिर जब बुद्धिज़्म का स्प्लिट हो गया तो लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कहने लग गए, तो लोगों को वहाँ पर भी प्रॉब्लम आने लगी। वो हिनायान को मानेंगे कि महायान को मानेंगे, तो ये सारे बेसिक रीजंस रहे किसके, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म के। फर्स्ट ये आपका शायद क्वेश्चन भी है, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म एंड शंकराचार्य रिफॉर्म मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक, दिस चैप्टर इज जैनिज्म। ठीक है, तो महावीर, वर्तमान महावीर वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के बहुत बड़े सेंट थे कौन, वर्तमान महावीर। द जैन्स बिलीव दैट महावीर वॉज द लास्ट और द 24th तीर्थंकारा और ग्रेट टीचर। ठीक है, द फर्स्ट वॉज ऋषभदेवा। ऋषभदेव, जब अगर कोई आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकार। लास्ट तीर्थंकार कौन थे, तो वो थे वर्तमान महावीर। वो कौन से तीर्थंकार थे, उनका नंबर था 24th। हम महावीर की अर्ली लाइफ को अगर डिस्कस करें बेटा, तो इनका बर्थ कुंडाग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडाग्राम में। कब हुआ था बेटा, 540 BC। अब मैं बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सीधे 2021 में अगर आप प्लस करेंगे 540 तो कितना आ जाएगा, 1652561। इतने ईयर पहले किसका बर्थ हुआ था बेटा, महावीर का। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। एक बार मैं और बता ही देती हूँ ठीक से, उस टाइम आप लोगों ने देखा नहीं। अभी चल रहा है बेटा हमारा 2021, ये बिफोर क्राइस्ट एरा है, सॉरी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट नहीं, बिफोर कॉमन एरा। तो हम इसके एग्जैक्ट ईयर को कि कितने साल पहले की बात हो रही है, उसके लिए क्या करते हैं, करंट जो डेट होती है उसमें उसको प्लस कर दो करंट ईयर में, ये आया 14652। तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 ईयर अगो, 2561 ईयर अगो किसका बर्थ हुआ बेटा, महावीर का बर्थ हुआ। इनका बर्थ भी कहाँ पर हुआ, बिहार में हुआ। एक रॉयल फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। 30 की जब इनकी एज थी, इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और एक जगह से दूसरी जगह घूमने लग गए। किस लिए घूमने लग गए बेटा, इन सर्च ऑफ नॉलेज। आफ्टर 12 ईयर ऑफ मेडिटेशन, इन्होंने कितने ईयर मेडिटेशन किया बेटा, 12 ईयर जब मेडिटेशन किया तो महावीर को सुप्रीम नॉलेज मिल गई। ठीक है, थ्रू दिस नॉलेज ही कनकर्ड बोथ मिजरी एंड हैप्पीनेस, दोनों पे ही इन्होंने कनक्योर कर लिया, जीत लिया, मिजरी को भी और हैप्पीनेस को भी। ही वॉज नोन एज जीना और द ग्रेट कॉन्क्यूरर, इनको जीना भी और ग्रेट कॉन्क्यूरर भी बोलते हैं। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जैन्स, और इसीलिए इनके फॉलोअर्स को क्या बोला गया, जैन्स। महावीर ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, महावीर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, काय के लिए, फॉर द स्प्रेड ऑफ हिज टीचिंग्स, फॉर टीचिंग अदर पीपल। यस, सो दिस इज द टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड एट राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर बेटा, रनकपुर। राजस्थान के रनकपुर में ये टेम्पल है और ये बहुत बड़ा जैन टेम्पल है। ये इसके आर्किटेक्चर के लिए बहुत रिकग्नाइज्ड है, नोन है। के साथ हम मोर टू नो सेक्शन भी कर लेते हैं। मोर टू नो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इनको छोड़ना नहीं है। दिलवरा टेम्पल है, दिलवरा टेम्पल कहाँ पर है बेटा, माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में एक दिलवरा टेम्पल है जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसका, जैन टेम्पल का। ठीक है, टेम्पल पे मार्बल से कार्विंग की गई है। ठीक है, विमल वाशी टेम्पल इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द टेम्पल्स बिल्ट इन दिलवरा, और दिलवरा में विमल वाशी जो टेम्पल है वो बहुत पुराना बना हुआ है। ये फर्स्ट जैन तीर्थंकार ऋषभदेव को डेडिकेट करते हुए बनाया गया था। ये भी अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। हम लोगों ने देखा था महावीर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, जा रहे थे। क्यों जा रहे थे बेटा, एनलाइटनमेंट के बाद, नॉलेज अटेनमेंट के बाद, फॉर स्प्रेडिंग हिज मैसेज। इन 468 BC ही पास्ड अवे एट पावापुरी, बिहार, राजगढ़ में पावापुरी है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई, और इनकी डेथ 72 ईयर में हुई थी, और गौतम बुद्ध की डेथ 80 ईयर्स में हुई थी। ठीक है, और लगभग इनके ओरिजिन का टाइम भी लगभग सेम ही है।
सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसकी टीचिंग्स की बेटा, महावीर की टीचिंग्स की, तो महावीर वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। उनको भी रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस पसंद नहीं थे। तो बुद्धिज़्म में भी रिचुअल्स को बाइकआउट किया, एनिमल सेक्रीफाइस को सेम कहाँ पर, जैनिज्म में भी किया है। ही बिलीव दैट एवरीथिंग हैज़ शोल, सबकी आत्मा होती है। देयरफॉर वन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंजरी ऑफ ऑल लिविंग, किसी भी लिविंग बींग को आपको कोई इंजरी नहीं देना है, ऐसा कहना था किसका, महावीर का। क्योंकि भले ही वो चींटी हो, हाथी हो, ह्यूमन हो, डॉग हो, कैट हो, प्लांट हो, सब में लाइफ होती है, ठीक है। इवन द अनकॉन्शियस किलिंग ऑफ एन इज अ सिन, अगर आप गलती से किसी चींटी को भी मार देते हैं तो भी ये पाप है, सिन है। द गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू महावीर इज टू सेट सोल फ्री, नॉट बी बोर्न अगेन इन टू द वर्ल्ड। महावीर की टीचिंग में ये था कि आपकी सोल को इस जीवन में इतने अच्छे काम करो कि आपकी सोल फ्री हो जाए, उसको अगेन इस वर्ल्ड में बर्थ ना मिले। और ये कैसे अचीव कर सकते हो, ये त्रिरत्न से आप अचीव कर सकते हो, त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ। बुद्ध हैज़ गिवन 8-fold पाथ, ठीक है, एंड 4 ट्रुथ, एंड ही हैज़ गिवन 3 रत्न 3 ज्वेल्स। और वो रत्न क्या थे बेटा, ज्वेल्स क्या थे, राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। उनका 8-fold पाथ था, क्या था बेटा उनका, लॉर्ड बुद्ध का 8-fold पाथ था, 4 टीचिंग्स थी। यहाँ पर 3 बिलीव्स हैं, आपको 3 बिलीव, 3 रत्न पे काम करना है, राइट बिलीव हो, राइट नॉलेज हो, राइट एक्शन। वन मोर कॉमन फीचर ऑफ बुद्धिज्म इज जैनिज्म। बोथ disagreed on caste system. They both want equality in the society. They were against caste system. ना जैनिज्म को में ना बुद्धिज्म में, दोनों में ही काय की बात हुई है बेटा, कास्ट इक्वालिटी की बात हुई है। इक्वालिटी की, कास्ट इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी की बात हुई है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। तो पहला हमने कॉमन फीचर देखा, वो कॉमन फीचर था कि रिचुअल्स के अगेंस्ट में थे। सेकंड था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे ही दोनों। He said that an individual was born into particular caste according to good and bad deeds of his previous birth. इनका मानना ये था कि जो इंडिविजुअल है किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का है या बर्थ उसका हुआ है तो उसकी गुड और बैड डीड्स पे डिपेंड करता था, ठीक है। He however taught that anyone irrespective of his caste could attain liberation. इनका भी मानना यही था बुद्धिज़्म की तरह कि किसी को भी लिबरेशन मिल सकता है, किसी को भी मोक्ष निर्वाण मिल सकता है, बस ये है कि उसके इस जन्म में कर्म कैसे होने चाहिए, काम कैसे होने चाहिए, अच्छे गुड डीड्स होने चाहिए। ही आस्क्ड पीपल, इन्होंने लोगों से कहा कि सिंपल लाइफ में बिलीव करो और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है स्टैचू ऑफ लॉर्ड महावीर। किसका स्टैचू है स्टूडेंट्स, लॉर्ड महावीर। रिलीजियस टेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म और महावीर। जितनी भी टीचिंग्स थी वो ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू प्रिजर्व की गई हैं, फिर बाद में उनको लिख दिया गया है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखा गया है, पूर्वाज और अंगास के फॉर्म में लिखा गया, पूर्वाज अंगास। और पहले ओरली उनको प्रिजर्व करके रखा गया। ओरली प्रिजर्व कैसे करेंगे, मतलब माउथ टू माउथ एक दूसरे को हम लोग बताते रहे, वो स्टोरीज एज इट इज़ रही, फिर हमने उसको पूर्वाज और अंगास में लिख दिया। सम लेटर एडिशंस फॉर्म्ड, वेट, बाद में उपांश इसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है। महावीर टीचिंग्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्ध मगधी, मतलब जो मगधी लैंग्वेज है उसमें प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई, और प्राकृत लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं, अर्ध मगधी, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज का ही दूसरा नाम है अर्ध मगधी, उसमें इन्होंने लिखा है, जबकि लॉर्ड बुद्ध ने पाली में लिखा है। मतलब दोनों ही, लॉर्ड गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने ही संस्कृत का यूज़ नहीं किया है, इन्होंने प्राकृत का किया है जो कि अर्ध मगधी है, और उन्होंने किसका किया है, पाली का किया है। वन कॉमन फीचर इज़ ऑल्सो देयर दैट इज़ स्पेल्ड, ओके। सेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने लॉर्ड बुद्ध के साथ देखा एक हिनायान और महायान बन गया, वैसे ही जैनिज्म के भी 2 स्प्लिट हुए, एक को बोला दिगंबर्स, दूसरा श्वेतांबर्स, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। दिगंबर्स मतलब स्काई क्लैड, दैट इज़ नेकेड, स्काई क्लैड मतलब नेकेड। दिगंबर्स जो थे वो नेकेड रहे, श्वेतांबर्स वाइट क्लैड, श्वेतंबर मतलब वाइट क्लैड वाले, ये जो थे ये कपड़े पहनते थे, ड्रेस में बिलीव करते थे। श्वेतांबर्स वाइट क्लैड और स्काई क्लैड दिगंबर्स मीन्स नो क्लॉथ्स, नेकेड।
There were no major difference between two sects except that दिगंबर इंसिस्ट ऑन रूल ऑफ न्यूडिटी. दिगंबर्स का मानना था, दिगंबर्स का इंसिस्ट था रूल ऑफ न्यूडिटी, और श्वेतांबर्स का था कि वाइट क्लॉथ आप पहनो. तो श्वेतांबर्स के जितने भी ऋषि मुनि होंगे उनको आप काय में देखेंगे बेटा, वाइट क्लॉथ में देखेंगे, और जितने भी दिगंबर मुनि होंगे वो काय में देखेंगे, आपको न्यूड दिखेंगे. ठीक है. द दिगंबर्स बिकेम कन्फाइंड टू सदर्न इंडिया. जो दिगंबर्स थे वो लोग कहाँ तक कन्फाइंड होकर रह गए, सदर्न इंडिया तक. श्वेतांबर्स सेटल डाउन इन राजस्थान एंड गुजरात. ठीक है. तो यहाँ पर भी दो सेक्ट बन गए, महायान हिनायान, और यहाँ पर श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स. ठीक है. अब हम स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड, द कॉजेज फॉर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इज लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, आदि मगधी, अर्ध मगधी, अर्ध आदि नहीं सॉरी अर्ध मगधी और प्राकृत कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, जो कॉमन भाषा में समझाया जाता है, वो लोगों को इजीली समझ में आता है. कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया तो बहुत सारे वो लोग जो रिजिड कास्ट सिस्टम से परेशान थे वो इनके फॉलोअर्स बन गए. रॉयल पैट्रोनेज, बहुत सारे लोगों ने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था. ठीक है. जैसे उनके जो पोते अशोक ने किसको अडॉप्ट किया बेटा, बुद्धिज़्म को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अडॉप्ट कर लिया था बेटा, जैनिज्म को. तो रॉयल पैट्रोनेजेस भी थे, बहुत सारे राजा क्या करते थे, अडॉप्ट कर लिया था जैनिज्म को. डिक्लाइन की बात करें, किसकी बात करें, डिक्लाइन की बात करें. कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने जैनिज्म के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया था. वो था जैनिज्म हैड टू कम्पीट विद बोथ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म. हिंदुइज्म से भी इसको कंपटीशन मिल रहा था और बुद्धिज्म से भी इसको कंपटीशन मिल रहा था. ये पॉइंट तो खैर हम किसके साथ भी लिख सकते हैं, बुद्धिज्म के डिक्लाइन में भी लिख सकते हैं कि बुद्धिज्म को भी हिंदुइज्म से भी कंपटीशन मिल रहा था और जैनिज्म से भी मिल रहा था. देयर वर टू मेनी पॉपुलर जैन रिलीजियस प्रीचर्स आफ्टर महावीर को. देयर वर नॉट महावीर के बाद कोई भी प्रीच ऐसा मिला ही नहीं जो इसको आगे की तरफ लेके जाता. लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, धीरे धीरे रॉयल पैट्रोनेज का लॉस होने लगा. बेटा एक रीज़न और है जो यहाँ नहीं लिखा, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. जैनिज्म को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल था. जैसे आप सपोज करो एक फार्मर है, आपकी एक फर्म है, तो जैनिज्म क्या बोलता था, हर व्यक्ति हर चीज़ में लाइफ है, हर इंसेक्ट में, पेस्ट में लाइफ है, आप उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते. तो बेटा अगर बीइंग अ फार्मर, अगर मेरे क्रॉप में पेस्ट लग जाएंगे, इंसेक्ट लग जाएंगे, तो मैं उसमें स्प्रे करूँगी ना. तो अगर मैं उस पर स्प्रे करूँगी तो मैं इट मीन्स मैं जैनिज्म को फॉलो नहीं कर रही हूँ. तो इस तरीके से थोड़ा मुश्किल भी था. जैनिज्म के जो रूल्स रेगुलेशन थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे बेटा, उनको फॉलो करना बहुत ईजी नहीं था. फिर न्यूडिटी, बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, तो बेटा न्यूड रहना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं था. तो ऐसे 2-3 रीज़न थे जिनकी वजह से डिक्लाइन कर गया क्या, जैनिज्म. बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म सिमिलैरिटीज़. सो फर्स्ट सिमिलैरिटी, एनिमल सेक्रीफाइस, रिचुअल सेरेमनीज़, इनको दोनों ने ही अपोज किया. कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया. ह्यूमन बीइंग इक्वल है, ऐसी बातें की. इन दोनों ने, बुद्धिज़्म में भी और जैनिज्म ने भी, नॉन वायलेंस की बात की, मोक्ष की बात की, निर्वाण की बात की. गुड डीड्स पे दोनों का ही बहुत स्ट्रेस था. ठीक है. दोनों ने ही कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाया. अब वो कॉमन लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है आपके हिसाब से. जैसे कि गौतम बुद्ध ने पाली में पढ़ाया तो महावीर ने प्राकृत में पढ़ाया, प्राकृत और मगधी में. Traders, craftsmen, peasants were attracted to Buddhism and Jainism because they felt that the religion was simple to practice. जितने भी ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, जो थोड़े से बिजी होते थे, ठीक है, तो इन लोगों को ऐसे पहले से लगने लगा था कि रिलीजन ऐसा होना चाहिए जिसको प्रैक्टिस करना ईजी हो, बहुत टेक्निकलिटीज़, बहुत कम्प्लेक्सिटीज़ ना हो. डिफरेंसेस की बात करें तो जैनिज्म स्ट्रेस ऑन एक्सट्रीम पीनेंस, बहुत ज़्यादा दर्द, हार्ड लाइफ में जैनिज्म का बिलीव था. बाकी बुद्धिज़्म एक्सट्रीम पीनेंस की बात नहीं करते थे, वो बैलेंस्ड लाइफ की बात करते थे. ठीक है. मैंने तभी बताया कि एक और रीज़न है कि जो जैनिज्म बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि हर रूल, हर रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत आसान नहीं था. देन द स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस इज सर्व इन जैनिज्म. नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा सर्व था कहाँ, जैनिज्म में. बुद्धिज़्म ने हमेशा बैलेंस्ड बात की है बेटा. ठीक है. पर उस पे स्ट्रेस इतना सर्वली नहीं किया है, बहुत ज़्यादा सर्व स्ट्रेस नहीं है बुद्धिज़्म में, पर जैनिज्म में बहुत ज़्यादा है. जैनिज्म कुड नेवर स्प्रेड आउटसाइड इंडिया. जैनिज्म कभी भी इंडिया के बाहर नहीं गया, पर बुद्धिज़्म बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज, श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, मेनी मोर कंट्रीज हु इज हैविंग द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म. So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.